Very good evening to each one of you on behalf of Ignited Minds by PHF under the guidance of Dr. Liyakat Namole Sir. I greet each one of you and welcome you to this forum of learning, from the different mentors every Thursday on the session of Guruji Ke Saath Guruvar. And today being the first Guruvar, we are fortunate to learn from our very own beloved Guruji. So I'm your host for the evening, Dr. Manisha Soni. And to introduce the speaker for today, it's a pleasure always because we are from the same college and he's a friend, mentor, guide, brother. So to tell you something about Dr. Liyakat Namole Sir, he's a most eminent and passionate homeopath from Nasik. And he has conducted a lot of seminars all across India. He's conducted more than 300 seminars, more than 300 webinars, special seminars on topics like infertility, diabetes, cancer, pediatrics. And these seminars that he's conducting, he's focusing on, his aim is to help a lot of general practitioners get back to practicing homeopathy. And he's already very successful in doing that. He has, he's a pioneer of this group that is the Ignited Minds by PHF, where so many doctors, almost 2,000 doctors are learning every day. And he's also the author of the book Humanopathy. And, to every student who has seen that book, always mentions it's such a wonderful book. So he's, working on the second edition. He's also invented 2 new drugs in homeopathy. So the list goes on and on. We can, really, we have so much to talk about, Sir. But one thing that I would want to add is that he's a wonderful teacher. So he really, that's his passion, and he really gives his, heart and soul into whatever he's teaching. So I believe that each one of us can really take this opportunity to not miss a single word of what he's teaching. And, let's be very attentive. Let's really focus. Let's not keep our phones on. Let's not distract, anyone. And let's focus on what he has to, share with us today. So over to Liyakat Sir. Welcome. Thank you, Nisha. So sweet. Welcome, sir. Such profuse, very profuse. So sweet. I feel so nice. I was really wishing that I was wearing the collared shirt today, but unfortunately I'm wearing t-shirt. Otherwise I would have said collar tight. Good evening, guys. Good evening. I'm going to teach something, a very simple case. Okay, very not though very not very frequently we see such cases. But of late, I'm seeing a lot of such cases, a lot, I mean. Okay. I had most of them, I don't have video records of. Okay? One case, 2 or 3 cases, I have video recordings. Otherwise, most of the cases that I saw were moreover home visits or where, like it was from a class where they did not allow video recording the case. Okay. And this remedy I have not used in, I think once only in a male case. Otherwise, most of them are females that I've seen these cases in. Okay, this remedy. Okay. So, very simple case. I'll tell you the case. I'm not very good at making slides. I don't like that much. It consumes a lot of time. Okay. Simple case of a lady. She was around 46, very good, classy sari, very wealthy family, pallu allu leke, uh, you know, uh, very decent clothing. Mm, I think it was tissue ki sari thi, white color ki, golden lines, and blouse and gale mein, kaar mein, naak mein वगैरह. But simple lady, but very elegant looking lady. And she had various complaints, like diabetes and things. And I went to see her, and Sasuma was also sitting, and Devrani was also sitting, and she was like little awkward. तो मैं बोला कि हम लोग थोड़ा आराम से बात करते हैं. And then she started कि डॉक्टर साहब मैं घर पे क्लिनिक पे ही आने वाली थी, पर ये फैमिली से मुझे छुटकारा मिले तब आऊंगा. यहाँ पे इतना घर में इतना काम होता है, जिम्मेदारियां होती है, तो बाहर जाने को मिलता ही नहीं. वो गए भी तो सिर्फ काम को जाओ और तुरंत आ जाओ. ज्यादातर तो ड्राइवर ही आता है.
तो ना छोड़ने के लिए, लाने के लिए फिर से वापस। तो वक्त ही नहीं मिलता, बाहर जाने को वक्त ही नहीं मिलता। मतलब मैं बाहर जाना ही नहीं, बच्चों को भी लाने जाने के रिक्शे है, गाड़ियां हैं, है ना, जैसे आप समझो। और ये बहुत सिमिलर थ्रेड आई हैव सीन इन मल्टीपल केसेस। So that sort of lady and with various complaints like uh, acanthosis and sugar and uh, diabetic neuropathy. Okay. और ये ज्यादातर मेरे काफी पहचान वाले थे, तो इससे अदरवाइज आई डोंट गो टू होम विजिट्स, बट समटाइम्स आई हैव टू, बिकॉज बहुत रेप्यूटेड फैमिलीज होती है, अच्छी फैमिलीज होती है जिनके मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है माशाल्लाह से, है ना। स्पेशली मारवाड़ीज, अपर कास्ट मुस्लिम्स, पंजाबी अपर कास्ट अगेन, these are the three, again, one Patil family also having, but very rich, very affluent, and not rich, wealthy, affluent, but very affluent and decent families. ज्यादातर जॉइंट फैमिलीज, जितने भी केसेस देखो सारी जॉइंट फैमिलीज के देखो आज तक के ये लेडी। बस, और फिर मैं जाने के बाद में कि क्या तकलीफ है, तो वन लेडी वाज टेलिंग कि मुझे नी में दर्द है, एक लेडी को डायबिटीज था, एक को हाइपरटेंशन था। तो मेरा, फिर आप क्यों ध्यान नहीं रखती, आप तो घर में ही रहते हो, आप जॉब वगैरह नहीं करते, नहीं पढ़े हैं, थोड़े बहुत पढ़े, लेकिन क्या था कि शादी होने वाली थी, ये चीज पता थी, तो फिर हमने पढ़ा ली, होम साइंस किया, है ना, कुकिंग वगैरह सीख लिया, वो क्या बोलते हैं उसको, कटाई बुनाई जो करते हैं वो सीख लिया, मतलब जो भी एक घर गृहस्थी चलाने के लिए वो भी चीजें होती है, वो सब चीजें इन लोगों ने की होती है, ट्रेन होती है उसके अंदर, सॉर्ट ऑफ लाइक तो फैमिली में ही वैसा उनको जताया जाता है, सॉर्ट ऑफ, एक स्पेसिफिक मन है, तो फिर दे आर लाइक ओके कि दे आर ओके कि ठीक है यही है। तो वो करके इन लोगों ने अपना संसार भी किया है, और संसार में काफी ये भी है ना, एक सेटल्ड फैमिली में भी है माशाल्लाह से। कुछ कुछ को फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद में भी प्रॉब्लम आते हुए मैं देखा हूँ, कुछ कुछ का चल रहा है, लेकिन दे आर लाइक लिविंग अ गुड लाइफ, लाइक ओके, कम ज्यादा, पैसे का कम ज्यादा, लेकिन दे आर लिविंग अ गुड लाइफ, भले होम लोन लेके वगैरह, लेकिन दे आर लीडिंग अ गुड लाइफ। ओके, सेटल्ड लाइफ, गुड बैड आई डोंट नो, सेटल्ड लाइफ। ओके, अगेन गुड एंड बैड इज अ relative term, so I don't use that. Settled life they have. Fine. तो दिस इज द लाइफ। एंड फिर मैं बात करूँ तो फिर ज्यादातर मेरे को ये औरतें भोली भाली लगी, सीधी सादी लगी। बात करने पर बोलो तो फिर कुछ नहीं, इनको कहाँ वक्त होता है, ये तो बिजनेस में होते हैं, नौकरी में होते हैं, ये समझ जाते हैं, लेट नाइट आते हैं, है ना, इनकी मीटिंग्स होती है, काफी बिल्डर्स है, एक दो कपड़े के व्यापारी थे कोई, तो है ना, दूध के व्यापारी, कोई ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस, ठीक है। तो ये इधर जैसे है ना, तो ये हस्बैंड्स अपने अपने कामों में बिजी, घर को आएंगे, लेट आएंगे, बीवी को वक्त देके पिक्चर वगैरह। दो फैमिलीज को पूछा था, हाँ जाते हैं हम, जाते हैं साल में एक दो बार, सलमान की पिक्चर लगने पर जाते हैं, है ना, या फिर कोई फैमिली पिक्चर, राजेश प्रोडक्शन की पिक्चर लगी तो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ। ओके, तो आप समझ लो मैं कौन सी टाइप की फैमिलीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें तो फिर अपन बोलते ना कि फिर आप क्यों अपने आप पे ध्यान नहीं देती, हाँ मैं ही पागल हूँ, मैं ही ध्यान नहीं दे रही थी, बाकी सब देवरानियां वगैरह अच्छे से ध्यान देती है अपने आप पर, मैं ही एक्सरसाइज वगैरह ही नहीं की, है ना। मैं ही नहीं करी, क्या अब गृहस्थी में इतनी अटक गई हूँ, इतनी होके निकलने को समय नहीं मिलता है, अपने आप को कहाँ वक्त दे पाती हूँ। स्विमिंग वगैरह, हाँ डॉक्टर साहब क्या बात है, स्विमिंग कब जमेगा हमको, स्विमिंग की क्या बात है, कब जाएगी, कब जाओगी मैं स्विमिंग को। अब नई नई जो बहुएं आ रही है वो जाती है, हमको कहाँ है डॉक्टर साहब, स्विमिंग वगैरह ये सब लोग, इससे हमारा क्या अवस्था है। मतलब वो तो काफी मॉडर्न उनको लगता है, स्विमिंग में औरतों ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के जाने का स्विमिंग पूल में, वो कहाँ है ना। हम्म, समझ रहे हो। तो दिस इज द टाइप ऑफ फैमिलीज दैट आई हैव सीन। तो आई वेंट वेरी वेरी सिंपल इन सच केसेस, आई गो वेरी सिंपल। कोई बोलना चाहे तो प्लीज बोलिए। हेलो, anybody wants to comment on such cases, very simple cases, very very simple case। बीमारी छोड़ दो, आई यू नो कि मैं ज्यादा पैथोलॉजी में पढ़ता नहीं, लेकिन ज्यादातर डायबिटिक न्यूरोपैथी, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, एकेंथोसिस निग्रिकेंस, हाइपोथायरायडिज्म, ये केसेस, और एज वाइज आने वाला आर्थराइटिस, स्पेशली नीज, नीज, ठीक है। अपन बोलते हैं ना कि अभी तो आप 50 की होते हैं भाभी जी, 45 की हो रही है,
कहाँ देखो ना, 45 कहाँ साल कहाँ दिन निकल गए। 30 साल हो गए डॉक्टर साहब मेरी शादी को, 35 साल हो गए डॉक्टर साहब मेरी शादी को। जल्दी होगी शादी, 16-18 में शादी होगी, 20-21 में शादी हो गई। अभी तो 55 की होगी मैं तो। इमेजिन करो ना, लेडी गेटिंग मैरिड एट 20 and you meet her at the age of 55. 35 years she has been married. 35 years तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी नहीं जॉब करते हैं, है ना। उसको 30 साल हो गए, 29 साल हो गए प्रैक्टिस को, तो बहुत बड़ा लगता है अभी सोचता हूँ ऐसे का। मैरिटल लाइफ ऑफ 30-35 इज ह्यूज, है ना। एंड देन टू यंग, like 55 में if you have married for around 35, let's say if you have married for 35 years, it's huge, very huge, है ना। Just like I am 50 and I have been practicing since 29 years, it's huge for me, for the world, it's huge, like 29 years is my God. अगर हम लोग यूएस यूके में होते और 30 साल की सर्विस बोला तो मुझे पेंशन ही, आज भी रिटायरमेंट लेता तो मुझे पेंशन 2-3 लाख रुपए की गवर्नमेंट देती थी, इफ आई वाज इन यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए और समथिंग लाइक। ओके, सो दिस इज द केस, जनरल थिंग, वेरी जनरल। बट आई होप आप लोग ऐसे केसेस को मिलते हो कि शादी जल्दी हो गई, घर गृहस्थी में जिंदगी निकल गई, 50-55 साल की उम्र हो गई, आप क्या करेंगे अब, 50 साल अब क्या करेंगे डॉक्टर साहब, अब तो क्या, है ना। फटाफट जिंदगी निकल गई, हस्बैंड बिजनेस में बिजी, ये अपनी गृहस्थी में बिजी, और बहुत ज्यादा बाहर का एक्सपोजर नहीं। कभी गए तो फैमिली के साथ जाते हैं, पिक्चर विक्चर रेयरली जाते हैं, शादी वगैरह में कभी कभार जाते हैं, शादी में भी जाते हैं तो घर की गाड़ी में जाते हैं, घर की गाड़ी में वापस आते हैं। मायके जाते हैं तो मायके से 8 दिन में 15 दिन में, 8 दिन में 15 दिन में, मैक्स टू मैक्स 8 दिन में, बहुत रेयरली 15 दिन में वापस आते हैं। हस्बैंड इनको छोड़ देता है शादी में, ठीक है। हस्बैंड शादी, इनके मायके में अगर कुछ मैयत है या शादी है तो हस्बैंड शादी के दिन आएगा या मैयत में आएगा, चला जाएगा। ये रहेगी 8-10 दिन, और फिर इनको लेने के लिए इनको कोई मायके वाला छोड़ देगा, या फिर इनको लेने के लिए घर से गाड़ी आ जाएगी। ऐसी फैमिलीज, ऐसी बहू या ऐसी सासू माँ लगती है फैमिली की, या वहाँ की लेडी। एनीबडी? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल गाइस? यस सर। या कोई बोलना चाहेगा? एकदम सिंपल सिंपल चलेंगे अपन, पहले समझ के चलते हैं। देखो, जब भी मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल चीज समझ के चलो कि कहाँ पर क्या लेना है। कि मान लो कि जब कोई लाइफस्टाइल डिसीज है, जैसे थायराइड, ब्लड प्रेशर, है ना, नी जॉइंट पेन्स लाइक ओल्ड एज, 50 के अंदर आने वाला नी जॉइंट पेन, डायबिटीज मेलाइटस, ओबेसिटी, ये सारी क्या है, लाइफस्टाइल डिसीजेस है ना। तो इसके अंदर हम ओवरऑल पर्सन को लेंगे, ठीक है। तो इफ यू आर टेकिंग ओवरऑल पर्सन, देन यू हैव टू लाइक सी what is the surrounding she is living in, what is the life that she has traveled, the course of her life, and in a nutshell, like to understand कि इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, फाइनेंशियली कैसा है, डोमेस्टिक कैसा है। डोमेस्टिक मतलब फैमिली कैसी है, ठीक। और आपका फिर कल्चरल कैसा है। हाँ जी, बोलिए। हेलो, एनीबॉडी? हेलो, आर यू देयर, आर यू अवेक गाइस? यस सर। यार इतना कोल्ड शोल्डर मत दो, फिर मैं डलका मारा हुआ चल जाऊंगा। सर सब कुछ है उसके पास, फिर भी ओके। कुछ कर नहीं सकती। और अब जब बच्चे बड़े हो गए तो अकेली रह रही है, थोड़ा सा अकेलापन महसूस होता होगा। हम्म। हस्बैंड उसके काम में है, सब उससे अपना अपना कर रहे हैं। हम्म। ओके। तो मैं कुछ ग्रेट। नहीं कर और रही, ये फीलिंग आएगा। हम्म। हम्म। और गुड बेटा। और हेलो। हाँ जी, हेलो हेलो सर। हेलो।
हाँ सर, हाँ। हेलो। ये लेडी जो है वो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। मतलब घरेलू, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था वो वैसे ही एकदम, मतलब आइडियल बहू बोल सकते हैं ना, कि घर पे ही पूरा ध्यान देने का, बच्चों को संभालने का। अब हालांकि हाँ। हस्बैंड टाइम नहीं देते हैं, कुछ नहीं, मतलब अटेंशन भी नहीं मिलता है। जैसे सुबह जाएंगे, हाँ। रात को लेट आएंगे, है ना। तो फिर हम्म। उनको टाइम भी नहीं मिलता रहेगा। स्टिल शी इज डूइंग हर वर्क। मतलब ड्यूटी हम्म। है कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है। उसने एक बात हम्म। बोली ना कि बाहर जाना होता नहीं है, गए तो मतलब मुझे वहां पे थोड़ा सा ये लगा कि उसको जाना इच्छा है, बट लाइक कि ये सब चीजें है वो कर नहीं पाती है। हम्म। कि जैसे स्विमिंग है, हम कहाँ करेंगे अभी ये एज में, हमको थोड़ी ना अलाउड करेंगे ये। मतलब कि उसकी इच्छा है, बट लाइक जो पहले से जो उसको संस्कार दिए हैं या फिर जो बोला है, जो मोल्ड में डाला है, वैसे ही उसको रहना है। वेरी गुड, ये मोल्ड वर्ड याद रखो। तो ऐसा मुझे फील हो गया वो। बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा तेरा? सोनाली। अच्छा, सोनू बात करिए, सो स्वीट। बहुत अच्छा सोनाली, वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी विद द वे यू आंसर इवन इन द ट्यूसडे लेक्चर्स। वेरी नाइस। द मोल्ड आपकी वर्ड वजह दैट से यू ही है यूज सर। इज फैंटास्टिक। अरे नहीं, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू बेटा। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू रियलाइज हु यू आर, है ना। वेरी नाइस। ये मोल्ड वर्ड बहुत अच्छा यूज किया सोनाली बेटा पे। और कोई? सर एकदम हाँ बेटा। प्लेन लाइफ है, ऐसे लग रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं। एकदम प्लेन, यानी दुख भी नहीं सुख भी नहीं, एकदम प्लेन। क्या बात। मंजू, किसने बोला? मंजरी ना? यस सर। लवली। हेलो। सी हाँ, यस यस हाँ, यस संतोष। नहीं, मैं मधु। हाँ, बोल अ, बेटा। आपके क्लास का मुझे इंतजार रहता है, हालांकि मैं मिस कर देती हूँ कभी कभी। हाँ हाँ। यस ओए, मुझे थोड़ा वो डांसिंग अनकॉन्शियस टाइप का, जैसे कि उसको कुछ पता नहीं, जैसे ही बहुत सारी गांव की महिलाएं हमारे पास जो आते हैं विलेज में, ऐसे ही है। उसको उम्र पूछने के बाद उनको मैं अपना सोचती हूँ, अरे ये तो मेरे से 10 साल छोटे होंगे, लेकिन लगते हैं जैसे मेरी मम्मियाँ, वैसे ही लगते हैं। बहुत सारी, हेलो। मतलब इंडियन 75% लेडीज ऐसे ही है। शादी हो गया बस वैसे ही चलता रहेगा। उनको खुद को ही नहीं पता कि मुझे ऐसे रहना चाहिए, वैसे करना चाहिए, थोड़ा फिट होना चाहिए। कुछ नहीं, अनकॉन्शियसली वो करती जाएंगी। मतलब उनको ही, खुद को ही रिकॉग्निशन नहीं है, ऐसा रहना चाहिए, ये करना चाहिए। सही। वही काइंड। वेरी जी। नाइस। गुड। rubric is not right, but your यस, मुझे understanding is पता है, very right. यस। फर्स्ट से तो Understanding is नहीं, there. लेकिन वैसे ही, हाँ। जी। अंडरस्टैंडिंग इज लाइक अंडरस्टैंडिंग। मैं वही बोल रहा हूँ, आप पहले ये इसको समझो, है ना, कि जी। क्या है। हम्म। हम्म। रूब्रिक तो मैं बता दूंगा, कोई नहीं, रेमेडी भी बता दूंगा। और आपको हम्म। आपकी जो केसेस आपको एसिड फर्स्ट लग रही है, या जैसे सोनाली ने क्या बोला? सोनाली, व्हाट रेमेडी यू थॉट बेटा? मुझे सेपिया लगी सर, कि वेरी गुड, वेरी गुड। सेपिया भी हो सकती है। सेपिया का लेकिन और रिएक्शन वगैरह रहेगा, ये एसिड फर्स्ट कोई में नहीं, भी वीकनेस एग्जर्शन रहेगा। नहीं नहीं, समझ के चलो। पहले हाँ, पहले ये इसका समझो कि कुछ ट्रीटमेंट क्या है, मतलब क्या आपको बोलते हैं? आप नहीं, छोड़ दो, उधर मत ध्यान दो। ओके। देखो मैंने क्या समझा है मधु, when it is a lifestyle disorder, यस। then don't go on the complaints, ओके। then go on the person. यस, यस। कि यस। what is making her sick and what is keeping her sick. यस। Okay, remember this thing, what makes her sick. मैंने बताया ना कि when case taking or when analyzing, when evaluating the case, focus on two things: what makes you sick and what keeps you sick. Okay, maintaining factors cannot be removed always. You can't remove, right? Like for a widow, you can't, I mean, she will have sexual suppression, right? So that is going to be a maintaining factor. For a celeb, you know, the one who's practicing celibacy, he will have sexual suppression.
right? So maintaining factor in there, Dr. Hanuman has said, is sexual suppression also one of the maintaining factors of the disease. But we have lovely remedies wherein you can actually, find your, uh, you can compensate that with something else. है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि sex is not the physical intercourse only, right? You can have orgasm, you can have stagegasm, you can, if you are a very good literary person, you can enjoy writing your poetry, right? You can enjoy that when driving, zoom, 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 zoom. You can have fun driving that. You can enjoy that when streaming, you can enjoy that in trekking. So I have seen in these such cases, इन लोगों की लाइफस्टाइल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं. ये नहीं कि ये विडो फिर शादी कर लेगी या फिर वो साधु बन गया है जो ब्रह्मचारी है वो शादी कर लेगा, ये नहीं होता है. वो तो हो जाए तो फिर वो तो बहुत ही माशाल्लाह हो भी सकता है. बट अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर लेडी 35 40 विडो रीमैरिज भूल जाओ, है ना? उसके बच्चे मार डालते हैं अपने इतने नैरो माइंडेड है अपने इसमें, इतना वो ट्रेडिशन, इतना अपने दिमाग, इसलिए तो ट्रेडिशनल प्रिजुडाइज वर्ड है ना. प्रिजुडाइज के बाद में ट्रेडिशन वर्ड आया हुआ है क्योंकि ट्रेडिशंस आर प्रिजुडाइसेस. प्लीज रिमेंबर दिस. द rubric is prejudiced tradition. That means tradition is pathological. Yes. Hello. Yes. Please remember this. तो मैं तो बताता हूँ ना, हिंदी में मैं बोलता हूँ, उसका अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन कर लेना. आज की पीढ़ी का आडंबर अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाती है. Remember ठीक. this. Okay, so that is how traditions are. But then you cannot break the tradition. But these people, I have seen these women, they will do cycling, they will go for yoga, they will do Zumba. Right? वो YouTube पर देख के जुम्बा करेंगे and they compensate well, very well. Okay, they compensate very, very well. Okay, that is what our medicines do. And hopefully जब इंडिया में ये era आ जाएगा कि 55 की विडो या 60 की विडो भी मैरिज करेगी. That happens in upper caste, that I've seen in Pune, especially in Brahmins, and likewise I've seen कि ये लोग करते हैं remarriage. I've seen that happening. That is a very welcome change that is happening in Indian society. As far as being a doctor, I'm telling, not being a social activist, being a doctor, and we know it's very good for health to have a partner in the old age. You need somebody of your own. You know? Anyways, coming back to our case, whatever I have told is related to the treatment part also. That's why I spoke about this thing. Anything else? मंजू ने जैसे बोला कि कोई एक्साइटमेंट नहीं लाइफ में. वेरी गुड. मैं यही चीजें आपको समझा रहा हूँ कि और कोई बताओ. मैं आप लोगों से ये रेमेडी की ये बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ. हाँ जी, और कोई? ड्यूटी कॉन्शियस लाइक कालिका. रूब्रिक वाइज मत सोचो. मुझको ये लेडी समझाओ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कौन से रूब्रिक लेने हैं, कौन से चीज को रूब्रिक पे कन्वर्ट करना है, ये मैं आपको समझाऊंगा. है ना? सी वी नो रूब्रिक्स बट वी डू नॉट नो विच रूब्रिक टू बी यूज्ड. सर डॉगमेटिक, रूटीनिस्ट, ड्यूटी कॉन्शियस. Again, you are putting all the rubrics of Kalika, darling. Just speak in Hindi or your mother tongue. Just describe me this lady. Just describe me this lady. डेली हाउस होल्ड कोर्स में शी इज डूइंग ऑल द थिंग्स इन अ मैकेनाइज्ड वे. लाइक डेली कोर्स, हाउस होल्ड कोर्स में लगे रहना, कोई प्लेजरेबल एक्टिविटी ना होना, जिसकी वजह से she is feeling mentally distressed or maybe physically also. I mean, no pleasurable activity. Very good. Very good. Very good. मतलब आपके सामने पंच पकवान है लेकिन उसके अंदर टेस्ट नहीं है. बराबर ना? मैकेनाइज्ड वे में. मतलब जीवन है सब, लेकिन उसके अंदर का वो जो मंजू ने जैसे बोला कि एक्साइटमेंट नहीं है. You are married to a dude, you are beautiful.
but he lacks the X factor. You lack the heat as a woman. A beautiful lady, but not hot. Hence, X factor lacking. Hello, Yes. is it right? Yes. और कोई मतलब इसमें रोमांस की कमी है, केयर की कमी है? हेलो, बराबर ना? और कोई और कोई मेरे पास में एक बहुत अच्छा एक पेशेंट ने बोला था, हमसे जीवन एकदम व्यवहारिक है डॉक्टर साहब, व्यवहारिक जीवन चल रहा है, व्यवहारिक वैवाहिक जीवन। ये बहुत अच्छा लगा था, लेडी बोली ना एकदम व्यवहारिक इस राम साहिब ना पापा। आई वाज लाइक, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वर्ड्स एज यू ऑल नो। आई वाज वेरी नाइस, मैंने क्या वर्ड इससे दिया है, व्यवहारिक जीवन चल रहा है। और कोई? हेलो, एनीबॉडी एल्स? हेलो, क्या हुआ है? By and large, I see my lecture, 90% are women doctors who attend my lectures that I've seen, but why do they not share things? I tell you, if I was a woman, I mean, if I was a female taking this case, maybe I would have discussed more things about her. So you all tell me, please, what does it like? Anything else? Hello? जैसे कि वो मान ली, वो जो लाइफस्टाइल है उनका, जैसे कि वो मान ली है, मतलब हम हाँ पहले से मान के चल रही है। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि हम औरतों को इच्छा जो होता है, मतलब फ्रेंड्स के साथ जाओ, घूमो, किसी पार्टी में जाओ, कुछ करो, अपने पी घर जाके भी आराम से कुछ दिन गुजारो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत जगह मैंने यहाँ पे देखा है, वही दिन पे छोड़ देंगे, फिर 4-5 दिन कड़क बस आ जाओ घर में, फिर काम धंधे में लग जाओ। लेकिन मन में ऐसा होता नहीं किसी का, थोड़ा घूमे फिरे और किसी को देखते होंगे सोसाइटी में, फिर अपने मन ही मतलब मन मार के चलना, जैसे ऐसे हो जाता है ड्राई। तो सप्रेशन यहाँ पे बहुत कुछ होगा। हाँ, बहुत सप्रेशन होगा, इमोशन सप्रेशन होगा धीरे धीरे। हस्बैंड के प्रति जो प्यार है, जो हस्बैंड से जो एक्सपेक्टेशन, वो भी धीरे धीरे जाएगा। तो फिर ड्राइनेस आ जाएगी। और कुछ नहीं, मतलब ये तो मेरे कोई सुनते नहीं, मुझे समझते नहीं, छोड़ो, ऐसे ही लाइफ चलता रहेगा और क्या करेंगे। ये तूने टोन यूज किया ना मधु, जी ये टोन बहुत परफेक्ट, ये एकदम परफेक्ट बोली, समझी ना? बहुत सपरेशन के बाद में मरना, हाँ, है ना? फिर इसके बीच का सफर, ये जिंदगी, बराबर ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, यही मैं बोल रहा हूँ, ये वाली बात करो। रूबिक को बोल रहा हूँ, रूबिक देखेंगे। तो होता क्या है ना, मतलब ये जो सोसाइटी में लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास सोसाइटी में वो इनिशिएटिव लैक होता है, मतलब डिवोर्स करें, लाइफ चेंज कर दें, ऐसे कर नहीं पाते लोग। ऐसे ही एक बार शादी हो गया, मतलब इसमें ही रहो, जो मिला उसमें ही खुश, यही टाइप की कहानी मैक्सिमम टू मैक्सिमम लेडीज में चलता रहता है। एग्जैक्टली, तो ये रेमेडी इतनी आप यूज करोगे आज के बाद में, जी इतनी आप यूज करोगे, आपकी सेलिया, आपकी पल्सटिला, आपकी कार्सिनोसिन, आपकी डल्कामारा, आपकी कालिका, है ना? या फिर आप कौन सी यूज करोगे? सिमिलर कौन सी लग रही है? कोई और रेमेडी लग रही है? इग्नेशिया, फाल्को, ये जो है ना, जितनी भी ये मॉरल वाली, कॉन्शियस वाली बहुए, है ना? पति पति भी मान लो, जहाँ पर बीवी ठंडी है, जो भी, आई मीन प्लीज समझ लो उसको कि भाई फैमिली ऐसी कि अभी बच्चे बड़े हो रहे हैं ना क्या, या फिर भाई रहता है, बड़ा भाई घर में रहता है, माँ बाप रहते हैं, तो ही हैज नो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, है ना? तो वो वाली फैमिली, राइट? और फिर आप वो लाइफस्टाइल को मान के चलना शुरू करते हैं, बराबर ना? वो है ना, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, और कैसे हो? हाँ, जी रहे हैं। है। कैसे बोले तो कैसे बोले? हाँ नहीं, हाँ जी रहे नहीं, हाँ जी रहे बोलेगी तो ये सटायर आ जाएगा। कैसे बोलने पर बोलते हैं हाँ, वो दे विल स्टार्ट टेलिंग द कंप्लेंट्स। यस, आप कैसे वो बोलोगे ना, तो ये बोल लोग कंप्लेंट बताएंगे, देखो डॉक्टर साहब
घुटने में दर्द है, डॉक्टर साहब शुगर बढ़ रही है, पैरों में दर्द है, फला फला फला। दे विल टेल द कंप्लेंट व्हेन यू आस्क देम कैसे हो। पता है कैसे हो बोलने के बाद में इमोशंस की बात करने वाला बोले तो कम्युनिकेटिव, मतलब जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हेलो, आप समझ रहे हो ना कैसे हो? हाँ सर चल रहा है, आप क्या? तो ये तो सीधा सीधा आ गया, ये तो सीधा सीधा प्लम्बर में आर्सेनिक की तरफ आ गया। डिलीजन ऑर्डिनरी लाइफ एंड मॉकिंग अटैक, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? सम, ये तो सीधा सीधा आर्सेनिक आ गया ना, या लैक्टिसिस आ गया। हेलो, इतना प्रॉपरली कम्युनिकेट कर दिया। तब जब आप पूछे कैसे हो, हाँ डॉक्टर साहब ये इतना दर्द है, ये अपन बोलेंगे अरे आप कैसे हो? मैं, हाँ मैं है ना सर, ठीक हूँ ना, ये देखो ना ये तकलीफ है, तो मैं ठीक हूँ, मैं, हाँ है ना सर, ये देखो ये है, मुझे ये दे दो सर, मुझे ये तकलीफ हो रहा है, वो हो रहा है, आप समझ रहे हो ना? तो उनको पता ही नहीं होता है कि भाई कैसे हो इसका कोई जवाब होता है। कैसे हो मतलब क्या कंप्लेंट है, ये मानने वाले भी एक लोग होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हाउ जिसको बोलते हैं ना, जिसको मैं जेस्चर्स का इसीलिए मैं लेता हूँ कि कैसे हो के बाद में जवाब क्या आ रहा है, वो बहुत जरूरी रहता है। समझ रहे हो? हेलो, जी। तो एकदम सिंपल अपन कैसे जाएंगे, इमोशन सप्रेस, बराबर ना? यस यस इमोशंस सप्रेस। अभी सप्रेशन में क्या होगा, सप्रेशन में क्या होगा, कभी इंसान दिल से सोचेगा, कभी दिमाग से। शुरू में क्या होगा, ये लड़की बहू बन के आ रही, तो शुरू में इस पर क्या हावी होगा, माइंड के इमोशंस। पहले तो इमोशन रहेगा। इमोशंस इमोशन माइंड, फिर माइंड क्या बोलेगा कि नहीं तू बहू है, तेरे को ये रहना, ये फैमिली से, ये अपन ये कल्चर के, अपन ये, अपन मारवाड़ी है, अपन मुस्लिम है, अपन सैयद है, अपन मराठा है, अपन देशमुख से, यस, सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना, अपन कॉन्फ्लिक्ट जय, चलेगा, कॉन्फ्लिक्ट। यस, ये आ जाएगा। तो कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है पता है क्या आपको? सिंपल, व्हाट इज द मतलब कॉन्फ्लिक्ट? तो कभी दोनों इमोशन, कभी माइंड, चीज, कभी इमोशन, दोनों कभी माइंड। चीज। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अल्टरनेट अल्टरनेट चलेगा। यस कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, यस यस। कभी बात निकली तो हर बात पे रोना आया। हेलो, वेरी नाइस। यस। समझे ना? हाँ, तो कभी इमोशन, कभी मेंटल, तो डालो इमोशनल अल्टरनेटिंग विद मेंटल सिम्टम्स। हेलो, कितना सिंपल है, इमोशंस अल्टरनेटिंग विद मेंटल सिम्टम्स, ऐसे रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? इमोशंस अल्टरनेटिंग विद मेंटल सिम्टम्स, कंप्लीट डायनेमिक्स के अंदर एक रूब्रिक, बहुत प्यारा है ना। मेंटल्स अल्टरनेटिंग विद फिजिकल, ऐसा भी रूब्रिक है ना, है ना कोई ऐसा रूब्रिक है ना? मेंटल सिम्टम्स अल्टरनेटिंग विद इमोशनल सिम्टम्स, मेंटल्स अल्टरनेटिंग विद फिजिकल सिम्टम्स, ऐसा है ना। कंप्लीट डायनेमिक्स में देखना, बहुत प्यारा रूब्रिक है। मेंटल अल्टरनेटिंग, और क्या होगा, और क्या आएगा इसमें, क्या, अब हमको क्या देखना पड़ेगा, ऐसे लोग क्या मानकर चल रहे हैं। जैसे मधु ने बोला था कि जैसे इसने मान लिया है कि ये मेरी जिंदगी, जैसे, तो जैसे का मतलब होता है डिल्यूजन। हेलो, जी। ऐसा है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे कश्मीर में है, अरे भाई कश्मीर में नहीं, माहौल कश्मीर में ऐसा है। तो डिल्यूजन एज इट इज इन कश्मीर, राइट? यस। डिल्यूजन एज इट इज ऑन हिल्स। तो व्हाट इज द डिल्यूजन, शायद दैट शी इज इन, इसके पास सब है, इसको जो चाहिए वो, लेकिन क्या ये बाहर निकल पाएगी चार दीवारी और छत? नहीं। मैंने कविता लिखा था एक पे कि चार दीवारी और एक छत, हम्म है ना, हम्म। चार दीवारी सोने और के एक छत। पिंजरे तक। अरे बाप रे, मंजरी, क्या बात है, सोने का पिंजरा। तो क्या रूब्रिक है सोने के पिंजरे के लिए? डिल्यूजन केस्ड। केज्ड, देखो, केज थोड़ा छोटा रहेगा ना, केज में तो लिमिट रहेगा ना बहुत। हाँ, डेंड्रोपोल है, थ्रिसेस है, दोनों ही है सिर्फ। केज तो छोटा है ना बेटा, ये केज में है क्या? पिंजरा हम्म। है, पिंजरा नहीं है ना, थोड़ा लिमिटेड है ना, बाहर जाती तो फिर वापस आना पड़ता है, कोई जा रहा है आ रहा है, किसके बच्चे को जाने ले जाने के लिए रिक्शा है, तो लिमिटेड फ्रीडम है ना। हम्म। हेलो, जी। दिस इज डिल्यूजन
अरेस्टेड, और आगे जा थोड़ा सा, इसको क्या फील होगा? डिलीजन, प्रिजन, अबाउट टू बी अरेस्टेड ऐसा रूब्रिक है ना? हाँ मानसी, हाँ, डिलीजन अबाउट टू बी अरेस्टेड है प्रिजनर, ये, तो रूब्रिक इज डिल्यूजन। अबाउट टू प्रिजनर बी सीरीज, अरेस्टेड यहाँ पे नहीं, अबाउट टू बी अरेस्टेड नहीं, दूसरा दूसरा, मानसी बोल रही, मानसी बोल। अरेस्टेड बीइंग, डिलीजन, प्रिजनर सीज, डिल्यूजन प्रेसिडेंट, शी इज आकाशी झेप घेरे पाखरा, सोडी सोन्याचा पिंजरा। तो पिंजरे का मतलब क्या होता है ना? एक्चुअली प्रिजन, जेल। पिंजरा पंछी के लिए, इंसान के लिए क्या है? प्रिजन है। हेलो, क्योंकि आपकी सासू माँ है, आपकी जॉइंट फैमिली, तो आप पर किल का पहरा है। पिंजरे में आपको आपको प्रिजन में पहरे का फील आता है ना? हेलो, कि देर आर गार्ड्स, तो गार्ड्स आर टू सेव यू, एंड गार्ड्स आर ऑल्सो टू कीप अ वॉच ऑन यू, दे कीप अ वॉच ऑन यू, तो दिस इज प्रिजनर। हेलो, आर यू गेटिंग मी? तो सी इज यहां तक सबको समझ में? यार सी ना, यहाँ पर ही का है उसमें, नहीं नहीं, सी इज ए प्रिजनर, अच्छा, तो शी है ना, यहाँ पर ही का है, शी डजंट हैव यस डिसीजन यस, मेकिंग कैपेसिटी। हेलो, तो जी, डिलीजन प्रेसिडेंट शी इज, देख लो अभी क्या आ रहा है, दिस इज, और क्या हो रहा है, तूने क्या बोला मधु? सप्रेस कर रही है और डेथ हो रही है। तो जब जी, जिंदा पने में आपके सेल्स मरने लग जाते हैं, तो क्या होता है वहां पर, क्या आएगा? मॉर्टिफिकेशन, उसके बाद क्या है? मॉर्टिफिकेशन, उसके बाद क्या? व्हाट आफ्टर डेथ, व्हाट आफ्टर मॉर्टिफिकेशन, व्हाट हैपेंस इफ द सेल्स स्टार्ट गेटिंग डेड? डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? क्या क्या होता है डिकम्पोजिशन में? डिकम्पोजिशन के साइंस एंड सिम्टम्स बताओ। अच्छा, देखो ये लेडी कैसी है, जिंदा है, लेकिन कहाँ है? लिमिटेड एटमॉस्फेयर में। हेलो, मतलब यस सर। लेकिन जिंदा है, लेकिन धीरे धीरे मर रही, धीरे धीरे मुरझा रही है। ये मुरझाया हुआ जिंदा, बराबर ना? जी सर, जान है क्या उसमें? ये कॉर्प्स है क्या, म्यूटिलेटेड कॉर्प्स, म्यूटिलेशन अलग होता है। अरे बाबा, क्या क्या होता है जब कोई, चलो एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने एकदम मस्त शादी, मतलब कैसी आई वो शादी करके आई, मतलब कैसी आई? सज धज बहुत के, बहुत सज धज के, सपने सजत के, बराबर ना? फ्लावर जैसे, फ्लावर जैसी आई, सजी हुई, फूलों में सजी हुई, पका हुआ खाना है ना, एकदम परोस, एकदम इट्स अ वेरी गुड डिश। शी हैज ऑल, यहाँ पर आके हो रही कि डिश गरम खाना वाना हो रहा है क्या उसका? मुरझी गई। नहीं तो खाने पे क्या होगा बाद में, फिर जब रखा जाएगा वहां पर तो क्या होगा? सड़ जाते हैं, सब एक घर है, ये है, सड़ना शुरू होगा, तो सड़ने के बाद में क्या आएगा वापस? गंदगी, अरे सड़ा खाना, खाना क्यों सड़ता है, क्या होता है उसपे? और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाएगा, तो क्या होता है फिर फंगस, वहां पर? फंगस फंगस आएगा ना? फंगस, तो, तो देखो फ्रिजर में कौन सा फंगस है? अच्छा, कैंडिडे, समझे? देखो फ्रिजर में कौन सा फंगस है? विच फंगस? कल का हमारा फाल्गु की मोनिलिया, जर्मनी, अल्बिका, मोनिला मोनिलिया, अल्बिकन्स, समझे? हेलो, हाँ अब हाँ, देखो मोनिला अल्बिकन्स, मोनिला यस अल्बिकन्स इज यीस्ट। यस यस, मोनिलिया, तो यीस्ट मतलब क्या? यीस्ट काय के लिए यूज करते हैं आप? दूध खराब करने के फर्मेंटेशन, लिए, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के लिए, खटास में। यीस्ट मतलब खट्टा, खट्टा खट्टा रहता है ना, खमीर ना, क्या बोलते हैं उसको आप उर्दू में? खमीर पनीर, बोलते, खमीर ना। मतलब इसकी जिंदगी कैसी है? खट्टास, खटास, खटास में पड़ी हुई जिंदगी है ना। हेलो, परफेक्ट,
अभी आप से बोलिए। सारे रूब्रिक आप देख लो, सारे सिम्टम आप देख लो, डिलीजन प्रिजनर, डिलीजन स्टूपिड, डिलीजन डिस्पाइट। सबसे भारी रूब्रिक उसके अंदर क्या है पता है, जो मुझे पसंद आया है सबसे, डिस्ट्रक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शंस, बराबर ना, डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन। उसके अंदर 6 रेमेडीज आ गए, एनाकार्डियम, बेलाडोना, इग्नेशिया, मोनिला, लक्स एंड ट्यूबरकुला। फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन बॉडी इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड, फ्रॉम माइंड इज ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड। फिर बाद में ये लेडी ओसीडी में भी जाएगी धीरे धीरे धीरे, बाद में फॉरगेटफुल भी बनती जाएगी। ठीक है, पहले डिलीजन प्रिजनर, डिलीजन डिस्पाइज्ड, डिलीजन रॉन्ग्ड एंड शी हैज रॉन्ग, में कहां पे आ गई यहाँ पर। बहुत अच्छा रूब्रिक है, डिलीजन सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड, इज सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। मतलब क्या, दुनिया में क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं है, मैं तो अपने घर गृहस्थी में ही अटकी हुई। हेलो, हम्म। दिस इज सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक, 47 रेमेडीज आ रहे। कई लोग आपको ऐसे मिले, क्या चल रहा है मुझे पता ही नहीं सर, बाहर की दुनिया में क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं तो अपने कामों में ही व्यस्त हूँ, मैं तो हाँ अपनी हाँ। उलझनों में ही व्यस्त हूँ। अगर आप समझ रहे हो, मैं अपनी ही उलझनों में व्यस्त हूँ बोले, तो डिलीजन ही सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, एंड डिलीजन उलझनों में व्यस्त। उलझन मतलब क्या है, ट्रैप। तो सेलिक्स फ्रजाइलिस, डिलीजन ट्रैप्ड एंड डिलीजन इज सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड। तो सेलिक्स फ्रजाइलिस, डिलीजन ही इज सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड एंड डिलीजन प्रिजनर। ये लगे तो 2-3 रेमेडीज आए, समझ गए। तो उनको पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है। हेलो, आर यू गेटिंग मी। फिर एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, फिर काउंटिंग कंटिन्यूअली, अब तो बस दिन गिन रही हूँ डॉक्टर साहब, काउंटिंग कंटिन्यूअली। फियर पनिशमेंट, वही ना, पनिशमेंट होती है ना इनकी फैमिलीज में, ये घरेलू, इसके अंदर क्या होता है, दे आर पनिश्ड ना, इधर पनिश्ड बाय गॉड और दे गेट पनिश्ड। एलिमेंट्स फ्रॉम, क्या है वो, एडमोनिशन, डांट मिलती है ना। अगर तुम खुद के बारे में जरा भी सोचो, तो सासू माँ ये वो क्या करती है, या फिर मायके वाले, ज्यादा उड़मट अपने अपने फैमिली में रहे, ये का उड़मट तो बहुत ज्यादा हो गया, बट नहीं, अपने इसमें नहीं चलता है ये, आपको बता रहे ऐसे रहो। तो आपको एक सेट ऑफ लाइफस्टाइल दिया हुआ है, आपको उसमें वो दायरे में जीना है। और आपको लगने लग जाता है कि मैं पागल हूँ, ये घर मुझे पागल कर दे रहा है, मैं कुछ सोच नहीं पा रही हूँ अपने बारे में। फिर या तो आप स्ट्रांग हो तो आप थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, बीमारी आ जाएगी। अगर आपको फिजिकल बीमारी नहीं आती है, जो कि सबसे वर्स्ट चीज है ऐसे इसमें, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होकर बहुत इमोशन में जाते, तो फिर आप ओसीडी में चले जाते। फिर आप, आर यू गेटिंग मी। तो कई बार हमको ये केसेस टेरेंटुला जैसे लगने लग जाती कि हस्बैंड का अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो ये लेडी ट्रेनिंग कर रही है, जबकि वो ओसीडी में चले जाती है। तो ओसीडी को हम फिर, देन इफ योर टैरेंटुला, इफ इट इज योर टैरेंटुला फेल्स, गिव मोनिका अल्बिकन्स, क्योंकि टैरेंटुला ऑल्सो वांट्स द अटेंशन ऑफ द हस्बैंड, दैट इज व्हाई शी डज ऑल दैट, क्योंकि उसके पास में भी सब कुछ होता है, बट एक सर्टन लेवल के बाद में टैरेंटुला को मजा चाहिए होता है ना लाइफ के अंदर। क्योंकि मैं बताया ना कि एक गांव की छोटे शहर की लेडी शहर में शादी करके आ गई हस्बैंड के पास, और हस्बैंड क्या कर रहा है कि गांव में बीवी को सास के पास में रख के खुद बाहर गाँव जॉब पे चला जा रहा है, जबकि ये लेडी की अरमान लेकर आई थी। फिर वो लेडी जो हिस्टेरिकल बनती है उसको हम टैलेंटुला देते हैं, बट ये लेडी अगर ओसीडी में जा रही है, जिसको हम हिस्टेरिया से कंफ्यूज कर रहे हैं, तो यू गिव मोनिला बिकॉज देयर। ओके, ailments from being neglected, ऐसा एक rubric है, she is neglected by the husband, right, and she is feeling that, and we also understand that this is because of neglect. Okay, ailments from being neglected में complete dynamics में Monilia albicans is given, Candida albicans, Monilia albicans is same. Hello, complete dynamics, please refer complete dynamics for these rubrics are given. Ailments from being neglected, delusion prisoner, delusion stupid, बहुत अच्छा rubric है ये। और तो एक पेशेंट ने मुझे बोला, डॉक्टर साहब ऐसा लगता है ना तो बस सो जाना,
उठना ही नहीं। तो क्या एक रूब्रिक बहुत अच्छा था, सैडनेस wants to sleep and does not want to get up ever। वो भी कंप्लीट डायलॉग, बहुत अच्छा रूब्रिक है। वो रूब्रिक हम यूट्यूब पर डालेंगे, प्रेजेंटेशन में डालेंगे। तो वेरी ब्यूटीफुल रूब्रिक्स, वील पोस्ट द रूब्रिक्स फ्रॉम कंप्लीट डायनामिक्स व्हाटएवर आई टोल्ड। मैं वो यूट्यूब के वीडियो में हम स्लाइड में वो डालेंगे, बिल्कुल। तो once my video comes out after 2-3 days, go through the rubrics, और if you have complete dynamics, download it from the net and browser एडिशन के अंदर आप इसके rubric जरूर देख लो। So very natural, not very well proven remedy those, but तो जो भी symptoms इसके हैं, इतने ब्यूटीफुल rubrics है, कुछ 190 या 200 rubrics होंगे माइंड के, less than 200 rubrics, but beautiful remedy। एंड आई टेल यू, आपकी पल्सक्ला फेल हो रही है, इग्नेशिया फेल हो रही है, ये जो भी रेमेडीज में पहले बोला, कालिका फेल हो, डलका फेल हो रही है, टैरेंटुला फेल हो रही है, यूज वन डोज ऑफ कैंडिडा बिकम्स 1 ml or 200, whatever you have, and see the magic and see the change in them. They will start doing exercise, they will start taking care of themselves, they will be little vocal. Hello, are you with me guys? जी जी। यस, बहुत बढ़िया I सर। hope this has convinced you. Anything else that you want to ask? सर वही कैंडिडा Diligently, मोनिलिया सेम है ना? same, Candida albicans, Monilia albicans, same. कैंडिडा तो है जी। Common cells होता है, it's a common cells, it's there in stomach and mouth. Common यस cells होती है अपनी। अभी कांग्रेस तो हाँ। मैं बताया ना कि against stomach and mouth, please remember, again family, against stomach, again mouth। तो पंगा इसका stomach और mouth का ही, भूख और बात नहीं कर पाने का ही नहीं, जीवन की भूख, और समझ रहे हो? और बोलिए, एनी क्वेश्चंस? हेलो, एनी क्वेश्चंस? सर वो डिस्पाइज और रिपुडिएटेड में थोड़ा डिफरेंस जानना था। डिस्पाइज मतलब डिस्पाइज मतलब आपको कराहत की नजर से देखते हैं, और रिपुडिएटेड मतलब आपसे दूर हट जाते हैं लोग। जब भी आप आते हैं तो आपसे दूर हटने लग जाते हैं। डिस्पाइज में आपको काउंट ही नहीं करेंगे, आपको बुलाएंगे ही नहीं। रिपुडिएटेड में आपको बुलाएंगे, लेकिन आपसे, आपके पास से लोग दूर जाना शुरू हो जाएंगे। इसका अर्जेंटम है ना, उसके अंदर अर्जेंटम है, और शायद से पता नहीं कौन है रिपुडिएटेड में। हाँ हाँ। अर्जेंटम नाइट्रिकम तो है, क्योंकि वो होता ही ऐसा ना कि देखो उसको जॉब नहीं करना है और वो बीमार रहेगा, तो कौन आपके पास आएगा ना, आपसे दूर दूर जाएंगे ना लोग फिर ऐसे। एक्वा वो मेरे ना। रिपुडिएटेड, तो आपसे दूर जाएंगे ना लोग। हम्म, ठीक है, एक्वामरीन में पढ़ा होगा, टिटल में पढ़ा होगा, टिटल में पढ़ा होगा। इसके लिए देखो, डिसकंटेंटेड विथ हिमसेल्फ, बहुत अच्छा रूब्रिक है ये रूब्रिक है, लेकिन आप याद रखें, डिस्ट्रक्टिवनेस फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस, इट्स वेरी गुड। ये आपको सबसे मेन यहाँ पे समझना है, सप्रेशन। हाँ, ओके। और ये टाइम पासेस टू फास्ट, फिर फियर पावर्टी पकड़ लो, फियर बिजनेस पकड़ लो, ये वही टाइम पासेस वाला मुझे पहले लगा था, टाइम पासेस वाला पहले लगा था। 4 सेकंड, देखो फियर ऑफ बीइंग 4 सेकंड, क्योंकि क्या होता है ना, हार्मनी डिजायर क्या होता है ना, ये लोग क्यों सबसे क्यों मिला के रखते हैं, पता है क्या? कि यार फिर ये मुझे फोर्सेक ना कर दे, मुझे अकेला ना गिरा दे, फैमिली वाले, सोसाइटी वाले मुझे अकेला ना कर दे, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। क्योंकि वो स्लॉट में नहीं बैठता ना, कि ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को लोग फिर थोड़ा सा फोर्सेक इसलिए कर देते कि उनके असर फिर उनके बहुओं पर, उनके घर के औरतों पर, उनके मर्दों पर ना पड़ना शुरू हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों को फोर्सेक करते हैं ना, फिर जो वोकल होते हैं, जो डेयरिंग वाले लोग होते हैं, इसलिए फिर ये लोग उनके जैसा रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए भैया हार्मनी में रहेंगे और उसमें रहेंगे, इसलिए फिर दे हैव फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी निग्लेक्टेड, दे आर ऑलरेडी फोरसेकन। थोड़ा सा वो डिविजन फोरसेकन में जाते, फिर फियर ऑफ बीइंग फोरसेकन में जाएंगे, नहीं भैया ऑलरेडी मेरे को फोरसेक कर दिया, तो फिर मैं अभी सबका मन जीतूंगी, हार्मनी डिजायर, हार्मनी करूंगी, और फिर ये कोशिश करूंगी कि लोग मुझे अलग थलग ना कर दे। इसके आप रूब्रिक जरूर देखिएगा, पिटीज हरसेल्फ, रिमोर्स, reproached oneself, reserved, rest cannot when things are not in proper place। अगेन आपने जैसे बोला कि डोमेस्टिक है, उसने पूरा की पूरा
रेस्टलेसनेस ऑफ कॉन्शियसनेस कंसाइंस, कितना अच्छा रूब्रिक है। एंजाइटी कंसाइंस नहीं है, रेस्टलेस ऑफ कंसाइंस है। एक एंजाइटी कंसाइंस है, एक है रेस्टलेसनेस ऑफ कंसाइंस। कितना ब्यूटीफुल रूब्रिक है ना। सेंसिटिव टू रेप्रिमांड, सेंसिटिव टू नॉइज, स्पीच वॉन्डरिंग, स्टुपेफैक्शन, जिसको आप अनकॉन्शियस बोल रही थी ना, वो स्टुपेफैक्शन है। हाँ हाँ। गॉट इट ना, जिसको आपने बोला। हाँ, तो फिर वीपिंग इजीली, वीपिंग एट रिफल्स, वीपिंग ड्यूरिंग एंगल, वीपिंग फ्रॉम वीकनेसेस। लास्ट रूब्रिक बहुत ब्यूटीफुल है, विल वीकनेस। विल है बट वीक है, इसलिए वो स्ट्रांगली उसको कर नहीं पा रही। छाती तो है डॉक्टर साहब, पर क्या इसको ये मैंने विल वीकनेस इनिशिएटिव का लैक बोला। यस हाँ, दैट इज एक्चुअली विल वीकनेस। और मैं यस। बहुत जगह पे ये, हाँ सर इच्छा तो है पर अब क्या, होता नहीं मेरे से, ये विल वीकनेस है ना। इच्छा है पर होता नहीं मेरे से, ये विल वीकनेस ऑफ है ना। वीक है ना, विल है बट वीक है। गॉट इट। इसके लिए हम कई बार कावर्डाइज में कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना है। वी हैव टू बी एम्पैथेटिक एंड एनालिटिकल, रिमेंबर दैट। तो इफ यू आर एम्पैथेटिक देन यू विल थिंक ऑफ अदर एंगल्स। जैसे आप रास्ते पर गाड़ी कार में जा रहे हो और कोई आपको बुम बुम कट मार के आगे निकल जा रहा है स्पीड से, तो आप शुरू हो जाओ, अपॉर्चुनिस्ट है ये, रैश ड्राइवर ये। अरे नहीं भाई, उसको अर्जेंट काम भी तो हो सकता है। तो जजमेंटल और एम्पैथेटिक में फर्क हो जाता है। आप जब एम्पैथेटिक हो जाते हैं तो सामने वाले की अड़चन को आप समझ के उसको समझना शुरू करते हैं। ये नहीं कि हम उसके बारे में जजमेंटल हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स दैट आई हैव सीन आर जजमेंटल। You are not supposed to be judged. You are supposed to be very empathetic and try to understand the person and his plight. Right? Hello? Then you will come to such rubrics like wheel weakness. Otherwise, अपन कावड़ इसमें जाएंगे, यार दुखा यार, इसकी डेयरिंग नहीं है यार। तो डेयरिंग नहीं है मतलब उसकी चाह है पर उसमें नहीं है, वो चाह है लेकिन उतनी स्ट्रांग चाह है, तो विल वीकनेस है। स्ट्रांग अनवीक, स्ट्रांग विल है तो आप जाओगे, जैसे नक्शल स्ट्रांग विल निकल गया। ट्यूबरकुलर स्ट्रांग विल, चला पहाड़ चढ़ रहा है, ये ना बैठ रहा है, स्ट्रांग है, विल है। चला गाड़ी उड़ा रहा है, विली कर रहा है, पहाड़ों पे जा रहा है, ट्रेकिंग कर रहा है, लेकिन वीक विल है, कैलकेरिया है, बराइटा है। हेलो, समझ रहे हो? हेलो, ये रूब्रिक समझ में है ना आपके? वीक विल है, हाँ सर। इच्छा है लेकिन स्ट्रांग नहीं है। इच्छा वीक है, स्ट्रांग के अपोजिट वीक है। हेलो, तो हर कोई, बहुत से लोग कुछ कुछ जगहों पर वीक पड़ जाते हैं, उनकी विल वीक पड़ जाती है। समय के अनुसार आपकी विल वीक होते जाती है, ये भी आप भूल जाते हो, है ना। जैसे जैसे आप उसमें रहने लग जाते हो ना, तो आपकी विल धीरे धीरे स्ट्रांग होते लगते, वीक होते जाती है। जिसको हम ज्यादातर एम्बिशन लॉस से कंफ्यूज करते हो, वो एक्चुअली वीकनेस ऑफ विल होता है। कावर्डाइज, इनिशिएटिव लैक, इसको क्लोजेस्ट रूब्रिक इज विल, वीकनेस ऑफ विल। ओके, एनी क्वेश्चंस? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक, है ना निशु? थैंक यू सर, बहुत अच्छा रहा। फिर हम रेप्लिकेट करके बताते हैं आपको। हाँ प्लीज। यस निशु। Yeah, thank you so much, Liyakat, for this wonderful, session of new age polychrest. I'm sure the remedies that we feel are, cases where there is similarity to such remedies, we will definitely, all of us will definitely use this remedy. Thank you so much for this session. Thank you. And nice shirt. I like that color.